Assalamu alaikum students. This is function analysis 25th lecture. लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया कि एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डुअल भी n डायमेंशनल होती है और उससे रिलेटेड एक और रिजल्ट हमने प्रूव किया. In today's lecture we discuss a result related to algebraic reflexivity. Reflex The statement of theorem is a finite dimensional vector space is algebraically reflexive. तो जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे, हम डुअल स्पेस, सेकंड डुअल स्पेस, कैनोनिकल मैपिंग, एम्बेडिंग, अलजेब्राइक रिफ्लेक्सिव स्पेस कौन सी होती है. तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास कैनोनिकल मैपिंग में उसकी रेंज एक्स डबल स्टार के इक्वल हो जाए, कैनोनिकल मैपिंग हमारे पास एक्स एक्स डबल स्टार में होती है. तो अगर उसकी रेंज जो है डबल स्टार के इक्वल आ जाए तो स्पेस को हम अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव बोलते हैं. तो यहाँ हम रिजल्ट दे रहे हैं कि अगर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल हो तो वो अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव होती है. We start the proof. Let us take a canonical mapping. C from x to x double star. It is defined by C of x is equal to gx. X is related one gx, where gx of f is equal to f of x for all f belongs to x star. तो canonical mapping को हम पहले भी define कर चुके हैं. In a similar way, we know that C is linear. हमने prove भी किया था कि canonical mapping linear होती है. Cx naught is equal to 0 means that for all f belongs to x star, we have Cx naught, yani Cx naught is equal to 0, where we take x naught from x, and Cx naught take x, C of x naught, Cx naught is equal to 0. Then Cx naught means Cxf, and this is equal to Gx naught f by the above definition of canonical mapping. This is equal to f of x naught, and Cx naught 0 means uh, for all f belongs to x star, f of x naught is equal to 0 with the definition of C. This implies that x naught is equal to 0 by the above theorem. तो इससे पहले जो थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसमें हमारे पास था कि अगर हमारे पास स्पेस फाइनाइट डिमेंशनल हो और एक्स फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो उसका कोई एक्स नॉट हम पॉइंट पिक करें, एंड इफ फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार, f of x naught 0, this implies x naught is equal to 0. C x naught is equal to 0 से ये हमने imply करवाया कि f of x naught is equal to 0 for all f belongs to x star, and this implies x naught is equal to 0 by above theorem. Now, by a theorem, if t from domain of T to Y be a linear operator with domain of T containing X and range of T lies in Y, X, Y are vector spaces both real or complex, then the inverse T inverse from range of T to domain of T exists if and only if Tx is equal to 0 implies X is equal to 0. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सी एक्स नॉट ज़ीरो से हमारे पास इम्प्लाई हो गया कि एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. So by this theorem, C inverse exists, and C inverse from R of C to X exists. Correct? Follows that the mapping C has the inverse C inverse from R of C to range of C to X, where R of C is the range of C. By the same result, as stated above, if dimension of
t is n less than infinity and t inverse exists, then dimension of range of t is equal to dimension of domain of t. And in this results, we see t inverse exists करता है और dimension of domain of t is n less than infinity. So the dimension of range of C is equal to dimension of domain. यहाँ पे domain क्योंकि x है तो dimension of x is equal to dimension of range of C. वहाँ पे था dimension of domain of T is equal to dimension of range of T when domain की dimension finite हो, से n हो और टी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास टी टी क्योंकि हमारे पास सॉरी सी हमारे पास जो मैपिंग है वो एक्स पे अप्लाई होती है, एक्स एक्स डबल स्टार में है, तो एक्स फाइनाइट डिमेंशन है, तो एक्स उसकी डोमेन बन रही है, तो एक्स फाइनाइट डिमेंशनल है। और सेकेंडली अभी हमने प्रूव किया कि सी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सी इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमारे पास रेंज सी की रेंज की डायमेंशन और सी की डोमेन यानी डायमेंशन ऑफ एक्स ये आपस में इक्वल होंगे। और क्योंकि हमारे पास डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ सी, दिस इज द नेक्स्ट पेज, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ सी इक्वल है डायमेंशन ऑफ एक्स के, और हम जानते हैं कि किसी भी स्पेस की डायमेंशन उसकी डुअल की डायमेंशन के इक्वल होती है। अगेन एक्स स्टार की डुअल क्योंकि एक्स डबल स्टार है, तो अगर एक्स की डायमेंशन n है तो एक्स स्टार की डायमेंशन भी हमारे पास n होगी। अगेन उसकी डुअल क्योंकि एक्स डबल स्टार है तो उसकी डायमेंशन भी n होगी, तो इसलिए हमारे पास एक्स की डायमेंशन एक्स डबल स्टार की डायमेंशन के इक्वल है। व्हाट दिस इम्प्लाइज, अभी हमने कहा था कि डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ सी के, और डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल है डायमेंशन ऑफ एक्स डबल स्टार से आवर प्रीवियस रिजल्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन उसकी डुअल की डायमेंशन के इक्वल होती है अगर वो फाइनाइट डिमेंशनल हो, और यहाँ पे भी एक्स फाइनाइट डिमेंशनल है, तो x की डायमेंशन हमारे पास इक्वल है रेंज ऑफ सी की डायमेंशन के, और x की डायमेंशन इक्वल है x डबल स्टार की डायमेंशन के। दिस implies डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x डबल स्टार, और c क्योंकि मैपिंग है x से x डबल स्टार में, तो इन जनरल रेंज ऑफ सी वो उसका सबसेट, अगर अगर उसकी प्रॉपर सब स्पेस है, रेंज ऑफ सी जैसा कि हम जानते हैं वेक्टर स्पेस है, अगर वो हमारे पास एक्स डबल स्टार की प्रॉपर सब स्पेस है तो रेंज ऑफ सी की डायमेंशन को लेस होना चाहिए डायमेंशन ऑफ एक्स डबल स्टार से, क्योंकि रेंज हमारे पास डायमेंशन रेंज ऑफ सी की डायमेंशन एक्स डबल स्टार से लेस नहीं आ रही, और वो उसकी सब स्पेस है, इसका मतलब है रेंज ऑफ सी एक्स डबल स्टार के इक्वल है, क्योंकि अगर हमारे पास रेंज ऑफ सी एक्स डबल स्टार की प्रॉपर सब स्पेस होती तो उसकी डायमेंशन को एक्स डबल स्टार की डायमेंशन से कम होना चाहिए था। दैट implies range of C is equal to x double star. Hence, because C is a canonical mapping from x to x double star, and we prove if x is finite dimensional, then this canonical mapping's range is equal to x double star, and by the definition of reflexive space, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास क्रोनिकल मैपिंग की रेंज एक्स डबल स्टार के इक्वल आ जाए तो एक्स जो है वो अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव हो जाती है। इन द केस ऑफ एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल, वी प्रूव रेंज ऑफ सी इज इक्वल टू canonical mapping is equal to x double star, hence x is algebraically reflexive. So every finite dimensional vector space is algebraically reflexive.
सेकंड हमारे पास आज के लेक्चर का जो पार्ट है, दिस इज द डिस्कशन अबाउट नॉर्म स्पेस ऑफ ऑपरेटर्स एंड डुअल स्पेस. Norm space of operators. We defined earlier the concept of a bounded linear operator and illustrated it by basic examples which gave the reader a first impression of the importance of these operators. Uh, in the present section, our goal is as follows. We take two norm spaces x and y, both real or both complex, and consider the set Bxy. What is Bxy? Yeah, B into x comma y, consisting of all bounded linear operators from x into y. That is, each such operator is defined on all of x and its range lies in y. We can show that Bxy itself be made into a norm space. अ, तो हम इस सारी डिस्कशन में ऑपरेटर्स की नॉर्म स्पेस इसका टॉपिक है. तो हम दो दो वेक्टर स्पेसेस लेते हैं या दो नॉर्म स्पेसेस लेते हैं, एक्स और वाई. और नॉर्म स्पेस क्योंकि वेक्टर स्पेस होती है, तो दोनों या तो रियल होंगी या कॉम्प्लेक्स, मतलब दोनों की फील्ड या तो रियल होगी या कॉम्प्लेक्स. और एक्स से वाई के अंदर डिफाइंड होने वाले तमाम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स के सेट को इकट्ठा करते हैं, उसका नाम रखते हैं हम बी एक्स वाई. और हमारा क्लेम ये है कि ये सेट वेक्टर स्पेस बनाता है जिसके एलिमेंट्स होंगे ऑपरेटर्स. कैसे ऑपरेटर? जो कि एक्स से वाई के अंदर हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं. ये सेट बजाते खुद एक वेक्टर स्पेस बनाता है. द होल मैटर इज क्वाइट सिंपल. First of all, Bxy becomes a vector space if we define the sum T1 plus T2 of two operators T1, T2 coming from Bxy in a natural way by T1 plus T2 into x is equal to T1x plus T2x, and the product alpha T of T belongs to Bxy and a scalar alpha by alpha T into x is equal to alpha T of x. So by these two simple operations, we can easily prove Bxy is a vector space. And now there is a theorem whose statement is the space Bxy, the vector space Bxy of all bounded linear operators form a norm space X from a norm space X into a norm space Y. Sorry, the vector space Bxy of all bounded linear operators from a norm space X into a norm space Y is itself a norm space with norm defined by T norm is equal to Tx norm over Tx norm supremum x belongs to x not equal to 0. Or the second definition of a norm is supremum x belongs to x norm whose x belongs to x whose norm is 1 of Tx norm. Uh, तो ये हमारे पास आइडिया है, ये थ्योरम दिया हुआ है, तो इसको इजीली प्रूव किया जा सकता है. हम पहले टी नॉर्म की पे नॉर्म की सारी कंडीशंस जो हैं वो प्रूव करके हैं, जहां हमने टी का बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म डिफाइन किया था. तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास क्योंकि ये अभी वेक्टर स्पेस है बी एक्स वाई, और ये नॉर्म नॉर्म की कंडीशंस को बी एक्स वाई पे सेटिस्फाई करता है. So Bxy is a norm space, the set of all bounded linear operators from a norm space X into norm space Y, where X, Y are norm spaces and both are real or both are complex means दोनों की dimension दोनों की हमारे पास फील्ड या तो रियल है या हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं. और इनको सिंपल जैसे हमने उनकी वेक्टर एडिशन यानी दो ऑपरेटर्स को ऐड कैसे किया जाएगा जो कि बी एक्स वाई से ले जाए, और दो ऑपरेटर्स को एक स्केलर को एक ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है. और दीज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर सिंपल ऑफ एज यूजुअल
functions addition and scalar multiplication of a function. So we can easily prove this is a vector space. And with the help of this norm, we can prove the properties of a norm. So this is Vxy is a norm space. Next question is, in what case will Bxy be a Banach space? This is the central question which is answered in the following theorem. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि Bxy नॉर्म स्पेस तो है, तो कुछ नॉर्म स्पेसेस बनाक होती हैं, कुछ नहीं होती। कौन सी नॉर्म स्पेसेस बनाक होती हैं? जो कि कंप्लीट हों। तो क्या बी एक्स वाई बनाक स्पेस होती है या नहीं? तो ये थ्योरम उसका आंसर करता है। एंड थ्योरम इज इफ y इज अ बनाक स्पेस देन बी एक्स वाई इज अ बनाक स्पेस। यानी अगर हमारे पास जो बी एक्स वाई आपने बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स की नॉर्म स्पेस बनाई है, इसमें दो स्पेसेस इन्वॉल्व हुई जिनके दरमियान से बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स को लिया गया, बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम x इनटू y। तो अगर इनमें से y बनाक स्पेस है तो बी एक्स वाई बनाक स्पेस होगी। इसका प्रूफ हम कंसीडर करते हैं। इसको let's start the proof. We consider an arbitrary Cauchy sequence Tn in Bxy and show that Tn converges to an operator T belongs to Bxy. Since Tn is a Cauchy sequence for array epsilon greater than 0, हमने Cauchy की definition apply कर दी. There is n such that of course natural number n Tn minus Tm less than epsilon for all mn greater than n. Uh, Now, for all x belongs to x and mn greater than n, uh, Tnx minus Tmx norm, this is equal to, because Tn and Tm are linear, so x को हम बाहर ले सकते हैं, so this is equal to Tn minus Tm into x norm. And because Tn is bounded, Tm is bounded, so Tn minus Tm is also a bounded operator. Because Bxy is a vector space, hence Tn and Tm is bounded linear operator. So by the definition of bounded linear operator, this norm is less or equal to Tn minus Tm norm and x norm. And by above Cauchy sequence definition, Tn minus Tm norm is less than epsilon for all Mn greater than n. So this developed into, for all x belongs to x, Tnx minus Tmx norm is less than epsilon multiplied by x norm for all mn greater than n. And we say this is equation 1. For any fixed x and given epsilon bar, we may choose epsilon is equal to epsilon x so that epsilon x multiplied by x norm is less than epsilon bar. तो हम किसी किसी भी फिक्स्ड x के लिए और एप्सिलॉन बार गिवन के लिए एप्सिलॉन की जगह एक ऐसा एप्सिलॉन एक्स चूज कर सकते हैं कि एप्सिलॉन एक्स को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स नॉर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन एप्सिलॉन बार आ जाए। thus from 1 we have tnx minus tmx norm is less than epsilon bar, as epsilon x with x norm is less than epsilon bar. So we put this tnx minus tmx is less than epsilon x, and epsilon x is less than epsilon bar. So tnx minus tmx is norm is less than epsilon bar, and this is true for all mn greater than n. दस इससे क्या शो होता है कि यह देखें टी एन एक्स किधर चले गए हम वाई के अंदर, क्योंकि टी एन और टी एम ये टर्म्स हैं हमारे पास सीक्वेंस की, और सीक्वेंस कहाँ से लिया गया है? बी एक्स वाई से लिया गया है। और बी एक्स वाई में कैसे ऑपरेटर हैं जो कि एक्स से वाई में बॉर्डर लीनियर ऑपरेटर्स हैं। तो जैसे ही एक्स पे हम ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं तो वाई के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो टी एन एक्स है वो वाई के अंदर काशी सीक्वेंस बन गया बाय बाय दिस tnx minus tmx is less than epsilon bar for all mn greater than n.
सिंस अब y क्योंकि कंप्लीट है तो इसका मतलब उसके अंदर हर काश सीक्वेंस उसी के एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा। तो से ये टी एन एक्स जो y के अंदर काश सीक्वेंस है y के कंप्लीट होने की वजह से ये उसके किसी एलिमेंट से y को कन्वर्ज करता है। से टी एन एक्स इज कन्वर्जेस टू y. Clearly, the limit y belongs to y depends on the choice of x belongs to x. क्योंकि हमने ये सारी जो स्टार्ट किया फॉर एनी फिक्स्ड x बिलोंग्स टू x, यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका मतलब है अगर एक एक्स फिक्स करेंगे तो एक टी एन एक्स हमारे पास काशी सीक्वेंस बन जाएगा और वाई की कंप्लीटनेस की वजह से वो वाई को कन्वर्ज करेगा। तो जो वाई लिमिट है वाई की वो क्लियरली डिपेंड कर रही है कि हम कौन सा एक्स एक्स से चूज करते हैं। दिस डिफाइंस एन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर को डिफाइन करता है टी फ्रॉम एक्स टू वाई वेयर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल वाई। हाउ वी डिफाइन दिस ऑपरेटर, यानी x से अगर हम कोई भी x लें तो ऊपर की डेफिनेशंस हमें बता रही हैं कि उस x के अगेंस्ट टी एन एक्स जो है वो काशी सीक्वेंस बन जाएगा और y की कंप्लीटनेस की वजह से उस काशी सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो y आएगी। तो इसका मतलब है जिस x से हमने स्टार्ट किया हर x के अगेंस्ट एक टी एन एक्स काशी सीक्वेंस बनता है और y की कंप्लीटनेस की वजह से उस टी एस एन की जो लिमिट है वो हमारे पास एक एक्स से एक वाई का एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है और उसी को हम कह रहे हैं कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। प्रॉपरली लिखा जाए तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ टी एन एक्स, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट of limit n tends to infinity tnx, which we say this is y. इस तरह से हमने ये ऑपरेटर डिफाइन किया। अब हम ये बताएंगे कि जो नया हमने ऑपरेटर डिफाइन किया है ये लीनियर भी है और ये बाउंडेड भी है। और फिर बताएंगे कि टी एन जो है हमने बी एक्स वाई से एक सीक्वेंस लिया था काश सीक्वेंस, वो इस टी को कन्वर्ज करता है। इसमें कुछ पेजेस स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो ये आपने इसको थोड़ा सा जज करके एलिमिनेट कर देना। तो पहले हम बताने जा रहे हैं कि टी इज लीनियर। द ऑपरेटर टी इज अ लीनियर बिकॉज टी अल्फा एक्स प्लस बीटा जी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, टी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू t of x is equal to limit n tends to infinity tn x. तो t of alpha x plus beta z is equal to limit n tends to infinity tn alpha x plus beta z. टी एन क्योंकि हमारे पास लीनियर है तो अल्फा नेक्स्ट स्टेप पे अल्फा बाहर आ जाएगा बीटा बाहर आ जाएगा, ये टी एन एक्स और टी एन सी में चेंज होगा। इसी तरह लिमिट अकॉर्डिंग टू एन टेन टू इन्फिनिटी है तो जहाँ पे एन इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी अल्फा एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन एक्स प्लस बीटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन सी। और हम जानते हैं कि by the definition limit n tends to infinity nx is equal to t of x, limit n tends to infinity t n z is equal to t of z by the definition of t. Hence, from this we say that t is linear. Now we prove that t is bounded and tn tends to t. Tn tends to t means tn minus tn norm tends to 0. Since one holds, so for every n m greater than n, and for all x belongs to x, tnx minus, consider tnx minus tx norm, which is equal to tnx minus, by the definition of t, tx is equal to limit n tends to infinity, uh, limit n tends to infinity, या limit m tends to infinity tmx। और यहाँ से हमारे हम लिमिट, क्योंकि नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, लिमिट को हम बाहर निकाल सकते हैं। जिससे m टेंस टू इन्फिनिटी टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स, and we know tnx minus tmx is less than epsilon x norm from start in equation 1. This shows that tm minus t is t with n greater than n is a bounded linear operator. अच्छा इस since tn is bounded, so tn minus t, यानी एक हमने प्रूव किया tn minus t बाउंडेड है, यहाँ प्रूव किया, और tn पहले ही बाउंडेड ऑपरेटर्स हैं और क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है तो tn minus t भी बाउंडेड ऑपरेटर होगा।
जो कि इक्वल आ जाता है टी के, दैट इज टी बिलोंग्स टू बी एक्स वाई. What it means, t is linear and t is bounded, so t is an operator from x to y, so t belongs to bxy. Furthermore, taking supremum in 3 over all x of norm 1, that is x norm is equal to 1, then अगर हम दोनों तरह साइड से सुप्रमम ले लें तो 3 में था क्या, टी एन एक्स माइनस टी एक्स लेस देन एप्सिलॉन विद एक्स नॉर्म. तो एक्स नॉर्म क्योंकि हम 1 रख रहे हैं तो उधर सिर्फ एप्सिलॉन बच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Tn x minus Tx norm. Supreme x norm is equal to 1 is less than epsilon, and this by definition of a norm of an operator, this is the definition of Tn minus Tn norm is less than epsilon. Hence, Tn minus T norm is tends to 0, because this is true for every epsilon. We can take epsilon smaller and smaller. So Tn minus Tn norm, T norm is tends to 0. And what this means? This means Tn tends to T. And what is Tn? Tn is a Cauchy sequence taken from Bxy. So if we take in arbitrary Cauchy sequence Tn from Bxy, then it converges to an element of Bxy. Let's say Tn tends to T here. By all this, we conclude that Bxy is a Banach space if y is a Banach space. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऊपर बाउंडेडनेस का प्रूफ दिया गया टी का, उसको एक और वे से भी यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा करके देखा है. ये देखिए, we may prove boundedness as, तो since one holds for mn greater than n and for all x, so take limit m tends to infinity on both sides. तो वन में अगर हम m tends to infinity दोनों साइड से ले लें, तो नॉर्म की कंटिन्यूटी की वजह से लिमिट जो है वो हमारे पास नॉर्म के अंदर चली जाएगी और अप्लाई हो जाएगी, और फिर जहाँ एम यूज़ हो रहा है वहाँ पे लिमिट ये तीसरे स्टेप पे अप्लाई हो जाएगी. और ये हमारे पास देखें फोर्थ स्टेप में टी एन एक्स और माइनस लिमिट एम टी एम एक्स, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ टी ऑफ एक्स. सो इससे आगे टी एन एक्स माइनस टी एक्स नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन एक्स, और हम जानते हैं कि क्योंकि टी और टी एन लीनियर हैं तो इसको लिखा जा सकता है टी एन माइनस टी into x. So Tn minus t into x norm is less than epsilon x norm. हम जानते हैं कि अगर t ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड हो तो उसकी डेफिनेशन है कि t of x norm is less than epsilon c times x norm, where c is any positive number. Here epsilon is a positive number. So in this way, Tn minus t is bounded linear operator. तो इस तरह से भी टी एन माइनस टी को बाउंडेड प्रूव किया जा सकता है, या जैसे थ्योरम के अंदर प्रूव किया हुआ. तो आज हमने एक तो रिफ्लेक्सिविटी का रिफ्लेक्स अलजेब्राइक रिफ्लेक्सिव का एक प्रूव किया, और हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव होती है. हमने कैनोनिकल मैपिंग लेकर उसका प्रूफ शो किया कि कैनोनिकल मैपिंग की रेंज अगर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल हो तो कैनोनिकल मैपिंग जो कि एक्स एक्स डबल स्टार में डिफाइन होती है उसकी रेंज एक्स डबल स्टार के इक्वल आ जाती है. सो एक्स इज अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव विद द कंडीशन एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल. सेकंड, हमने डिस्कस किया बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को डिस्कस किया. और हमने कहा कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स जो कि किसी नॉर्म स्पेस एक्स से वाई के अंदर वो तमाम का मजमुआ जो कलेक्शन जो है वो ज़ाते खुद एक वेक्टर स्पेस बनाती है विद सिंपल ऑपरेटर्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की. और हमने बताया कि जो नॉर्म हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर पे पढ़ के आए हैं वो क्योंकि नॉर्म की सारी कंडीशंस स्पेस के अंदर भी पूरी करेगा. सो बी एक्स वाई इज अ नॉर्म स्पेस. सेकेंड, हमने क्वेश्चन रेज किया कि क्या ये जो नॉर्म स्पेस है बी एक्स वाई ये भी बनाक होगी या नहीं.
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने नेक्स्ट थ्योरम में दिया, जो अभी हमने प्रूव किया कि बी एक्स वाई बनाक होती है अगर वाई बनाक स्पेस हो। और ये अभी हमने लास्ट में इस रिजल्ट्स को प्रूव किया। हमने बी एक्स वाई से एक टी एन बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स का काशी सीक्वेंस लिया और शो करवाया कि उसी के एक ऑपरेटर टी को कन्वर्ज करता है। सो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। अपना क्वेश्चन कोई हो तो वो ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।